یہ ہے اسٹیو جاب، دا فاؤنڈر آف ایپل کمپنی۔ یہ دنیا کی اس کمپنی کا فاؤنڈر ہے جس کا آج $2.95 ٹریلین نیٹ ورتھ ہے۔ اسٹیو جاب اپنے زمانے کا ایک بریلینٹ لیڈر اور آؤٹ اسٹینڈنگ بزنس مین رہ چکا ہے۔ وہ اپنے کریٹو آئیڈیاز اور انوویشن کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ایک اسپیچ کے دوران اپنی زندگی کا 3 بڑی لیسن صرف 3 سٹوریز میں بتائے تھے، اور آج میں آپ کو وہ 3 سٹوریز سمپل اور ایزی وے میں بتا رہا ہوں۔ صرف آواز میرا ہے، سٹوریز اسٹیو جاب کے ہے، تو پورے دھیان سے سننا۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت بڑا ویلیو مل سکتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کا صرف 3 کہانیاں بتا دو، بس صرف 3 کہانیاں۔ سب سے پہلی کہانی ہے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا۔ ریڈ کالج میں ایڈمیشن لینے کے 6 مہینے بعد میں نے کالج چھوڑ دیا، لیکن پھر اگلے 18 مہینے میں کالج میں آتا جاتا تھا۔ تو پھر کیوں میں نے کالج چھوڑ دیا؟ یہ میرے پیدائش سے پہلے شروع ہوا تھا۔ مجھے پیدا کرنے والی ماں، جو ایک نوجوان غیر شادی شدہ اور کالج گریجویٹ تھی، وہ مجھے کسی اور کو حوالہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا مجھے اڈاپٹ کر لے جو کالج گریجویٹ ہو۔ تو سب چیزیں میرے پیدائش سے پہلے میرے لیے سیٹ تھی کہ ایک لائر اور اس کی بیوی مجھے اڈاپٹ کر لے۔ لیکن جیسے میں پیدا ہوا تو انہوں نے اپنا من بدل لیا کہ ان کو تو لڑکی چاہیے، اور اسی طرح لائر اور اس کی بیوی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسی رات میرے پیرنٹس کو کال آیا، جو ویٹنگ لسٹ میں موجود تھا، کہ ہمارے پاس تو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہو گے؟ تو میرے پیرنٹس نے کہا جی بالکل۔ جب مجھے جنم دینے والی ماں کو پتا چلا کہ جو بھی مجھے اڈاپٹ کر رہا ہے وہ تو کالج گریجویٹ نہیں ہے، میرے ماں تو کالج گریجویٹ نہیں ہے، اور میرے باپ تو ہائی اسکول بھی گریجویٹ نہیں ہے، تو انہوں نے فائنل اڈاپشن کے پیپر پر سائن کرنے سے انکار کیا۔ کچھ مہینے بعد مجھے اڈاپٹ کرنے والے والدین نے میرے ماں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں کالج ضرور جاؤں گا، اور پھر وہ مان گئی۔ یہ میرے زندگی کا شروعات تھا، اور پھر 17 سال بعد میں کالج جانے لگا۔ میں نے غلطی سے ہی اسٹینفورڈ جیسے مہنگے کالج میں ایڈمیشن لے لیا، اور مجھے اڈاپٹ کرنے والے والدین کی سارا جمع پونجی میرے کالج کے ٹیوشن میں جاتا تھا۔ پہلے 6 مہینوں میں نے کالج میں اپنے زندگی کا کچھ ویلیو نہیں دیکھا۔ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ میں زندگی میں کیا کروں گا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ کالج کس طرح میرا مدد کرے گا اپنے زندگی میں کچھ کرنے کے لیے۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کالج چھوڑ دو، اور اپنے کام کرنے والے والدین کی پیسہ وہاں پر نہ لگاؤ جہاں پہ میں اپنا مستقبل نہیں دیکھ سکتا، اور میں نے یقین کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ یہ اس وقت میرے لیے بہت زیادہ خوفناک تھا، لیکن بعد میں جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو یہ میرے زندگی کا سب سے بیسٹ ڈیسیجن تھا۔ جب میں نے کالج چھوڑ دیا تو میں نے وہ سارے کلاسز چھوڑ دیے جس میں میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور ایک کلاس لینا سٹارٹ کیا جس میں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ میرے زندگی کا وہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ کالج میں میرا اپنا روم نہیں تھا، اور میں دوستوں کے روم میں زمین پر سوتا تھا۔ میں کوکا کولا کے خالی بوٹلز کو اکٹھا کر کے بیچتا تھا، اور اسی پیسوں سے میں کھانا کھاتا تھا۔ میں ہر اتوار کے رات 7 میل دوری ہری کرشنا گرجے پہ جاتا تھا فری خوراک لینے کے لیے، اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے کالج میں سیکھی، اور جس کی وجہ سے میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ریڈ کالج اس وقت پورے ملک میں کیلیگرافی کا سب سے اچھا انسٹرکشن دیتے تھے۔ پورے کالج میں ہر پوسٹر، ہر لیبل بہت خوبصورتی سے ہاتھوں سے بنایا گیا۔ میں نے تو کالج چھوڑ دیا اور نارمل کلاسز نہیں لے رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیلیگرافی کا کلاسز لیتے ہیں۔ میں نے صرف اور صرف ٹائپیسس سیکھ لیا۔ میں نے مختلف لیٹرز کمبینیشن میں اسپیس سیکھ لیا، اور میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اچھا ٹائپوگرافی کیوں اچھی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، تاریخی تھا، اور اتنا آرٹسٹک تھا کہ سائنس کے نظر سے یہ کیپچر نہیں ہو سکتا، اور میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔
उस वक्त मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये स्किल आगे जाके मेरे जिंदगी में किसी न किसी काम आ सकेगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो ये सब मेरा बहुत काम आ गया और मैंने ये सब चीजें मैक में डिजाइन कर लिया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत टाइपोग्राफी था। अगर मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी का क्लासेस नहीं लिए होते तो आज किसी भी मैक में मल्टीपल टाइपेसेस और प्रोपोर्शनल फॉन्ट स्पेस नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होता। अगर मैं कॉलेज में नॉर्मल क्लासेस नहीं छोड़ता और कैलीग्राफी का क्लासेस नहीं ज्वाइन करता तो ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में खूबसूरत टाइपोग्राफी नहीं होता। यकीनन ये इम्पॉसिबल था कि डॉट्स को मैं आगे कनेक्ट करूं जब मैं कॉलेज में था, लेकिन ये मुझे बहुत क्लियर दिखाई देता है जब मैं 10 साल बाद पीछे देखता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तुम कभी भी अपने जिंदगी का डॉट्स फ्यूचर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तुम वो सिर्फ पास्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें यकीन करना होगा कि ये डॉट्स किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर के साथ कनेक्ट होंगे। तुम्हें किसी न किसी चीज पर तो यकीन करना होगा, अपनी जिंदगी पर, अपने मकसद पर, अपने पैशन पर और अपने आप पर। किसी न किसी चीज पर तो आपको यकीन करना होगा, क्योंकि इस चीज पर यकीन करना कि आगे जाके आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको आपकी दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा और उस वक्त भी जो आप बिल्कुल अलग रास्ते पे जा रहे हो और ये चीज आपको और लोगों से अलग करता है। तो मेरे पहली कहानी से सबसे बड़ा सीख यही मिलता है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आगे जाके आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। बस सिर्फ आपको अपने आप पर यकीन करना होगा जो कुछ भी आप कर रहे हो। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के बारे में। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे वो काम जल्द ही मिल गया जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं 20 साल का था कि मैंने और वाज ने एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी अपने वालिदैन के गैराज से और सिर्फ 10 सालों में हम दोनों ने $2 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी जिसमें 4000 एम्प्लॉय काम करते थे। जब मैं 30 साल का हो रहा था तो उससे 1 साल पहले हमने सबसे अच्छा कंप्यूटर मैकिन्टॉश रिलीज किया और जब मैं 30 साल का हो गया तो मुझे अपने ही कंपनी से निकाला गया। ये कैसे मुमकिन है कि कोई अपने ही कंपनी से निकाल दी जाए? तो बात कुछ ये है कि जब एप्पल ग्रो कर रहा था तो मैंने एक बंदा हायर किया जो मैं सोच रहा था कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो मेरे साथ एप्पल कंपनी चलाएगा। पहले साल में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर आगे जाके हम दोनों का सोच एक दूसरे से अलग हो गया और कंपनी नीचे आने लगी। जब कंपनी नीचे आ रहा था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हम दोनों को बुलाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरे खिलाफ वोट की और उसके साथ हो गए और मुझे अपने ही कंपनी से निकाला गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी हार थी और मैं अपने जवानी का सारा फोकस खो चुका था। मेरे सारे हौसले टूट चुके थे। पहले कुछ महीनों में तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे बिजनेस का पुराना एम्पायर खत्म हो चुका है। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और मैं सोच रहा था कि अपना इलाका ही छोड़ दूं। लेकिन फिर से मेरे जिंदगी में कामयाबी का सूरज तुलू हो गया। मैं मोहब्बत करता था अपने काम से। एप्पल में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसका मेरे जिंदगी पर कुछ असर नहीं हुआ। एप्पल से मुझे निकाला गया लेकिन मैं अभी भी अपने काम से मोहब्बत करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर से स्टार्ट लेते हैं। मैंने फिर पीछे नहीं देखा, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ एप्पल में हुआ वो मेरे अच्छाई के लिए हुआ। कामयाबी का बोझ मेरे कंधों पर था और अब ये तब्दील हो गया एक नई शुरुआत की रोशनी से। उसके बाद मैं अपने जिंदगी का सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने 2 बड़ी कंपनी स्टार्ट की, पेक्सर और नेक्स्ट। और उसी वक्त मुझे मोहब्बत हो गया एक दिल परेब औरत से।
जो फिर मेरी बीवी बन गई। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और वो अब दुनिया की सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। जिंदगी की इस खूबसूरत लम्हों में एप्पल ने मेरा नेक्स्ट नाम की कंपनी खरीद ली और मैं वापस से एप्पल में चला गया। और जो टेक्नोलॉजी हमने नेक्स्ट में डेवलप की थी वो अब एप्पल के लिए दिल की तरह काम करता है। मैं और लॉरेंस बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था। मैं इस बात पर पूरा यकीन करता हूँ कि अगर एप्पल से मुझे नहीं निकाला गया तो ये सब कभी भी नहीं होता। ये एक बहुत कड़वा दवा था, लेकिन ये बीमार के लिए जरूरी था। कभी कभार जिंदगी आपको बहुत टफ टाइम देगी, आपका सर पत्थरों से मारेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, अपने आप पर यकीन करना होगा। मैं सिर्फ एक बात से मुतमईन हूँ और वो है मेरा मोहब्बत। मैं अपने काम से मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत ने मुझे कभी भी गिरने नहीं दिया। तुम्हें अपना मोहब्बत तलाश करना होगा। जिस तरह तुम अपने माशूक से मोहब्बत करते हो तो उस तरह तुम्हें अपने काम से भी मोहब्बत करना होगा। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और तुम सिर्फ एक सूरत में सेटिस्फाइड हो सकते हो कि तुम वो काम करो जो तुम्हें ग्रेट लगे, और ग्रेट काम वो होता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अगर तुमने अभी तक ग्रेट काम तलाश नहीं किया तो तलाश करते रहो, कभी भी रुकना नहीं। जैसा कि दिल से हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चलेगा। और जिस तरह एक अच्छा रिलेशन वक्त के साथ बेहतर होता जाता है तो उसी तरह आपको अपने काम से मोहब्बत होगा वक्त के साथ साथ। इसलिए इसे तलाश करो, कभी भी रुकना नहीं। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा जो कुछ ऐसा था, अगर तुम हर रोज ऐसा सोचते हो कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो एक न एक दिन आप बहुत सही सोचेंगे। इस कोट ने मेरे जिंदगी पर बहुत गहरा असर किया और उस वक्त से अब तक पिछले 33 सालों से हर सुबह आईने में मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या तुम वो करते हो जो तुम करने वाले हो, और अगर इसका आंसर ना होता है तो मुझे कुछ न कुछ बदलना चाहिए। ये बात याद रखना कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ये मेरे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े फैसले मुझसे करवाते हैं, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें, सारी बाहिर तवक्कुआत, सारे गुरूर, फेल होने का डर, फेल होने का शर्मिंदगी, ये सब चीजें मौत के डर से गिर जाते हैं। ये मौत के चेहरे को देखकर डर जाते हैं। तो सिर्फ वो चीज यहाँ पर छोड़ दो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात याद रखना कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका था मुझे अपने आप को जानने का, और ये सबसे अच्छा तरीका था उस सोच को छोड़ने का कि मैं कोई चीज हार जाऊंगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ अपने दिल की सुनो। कोई भी नहीं चाहता कि वो मर जाए, वो भी जो जन्नत में जाते हैं। और मौत ही वो एक वाहिद चीज है जो हम सब एक दूसरे के साथ शरीक करते हैं। कोई भी आज तक मौत से नहीं भागा, क्योंकि मौत ही जिंदगी का सबसे बेस्ट इन्वेंशन है। ये जिंदगी चेंज करने वाला एजेंट है। ये साफ करते हैं पुराने और रास्ता बनाते हैं आने वालों के लिए। और अब वो आने वाले तुम हो, लेकिन कुछ ही वक्त बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। मुआफ करना इतना नटंगी बनने के लिए, लेकिन ये कड़वा हकीकत है। आपका टाइम लिमिटेड है, तो कभी भी अपने जिंदगी किसी और की नजर से मत जियो। दूसरों के ओपिनियन इतना मत सुनो कि आपका अंदर का आवाज गुम हो जाए। और सबसे जरूरी अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारे दिल को पता होता है कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब चीजें बाद में। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए ये 2 मांगे हैं और आपके लिए भी विश करता हूँ। तो स्टे हंग्री मतलब हमेशा भूखा रहो। आपके अंदर किसी न किसी चीज का भूख तो होना ही चाहिए। और स्टे फुलिश मतलब हमेशा मूर्ख रहो, नादान रहो। कभी भी अपने आप को परफेक्ट मत समझो कि मुझे सब कुछ आता है। जब तुम अपने आप को परफेक्ट समझेंगे तो आपके माइंड्स को ताले लग जाएंगे और आप फिर कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो हमेशा सीखने की कोशिश करो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस
इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यू जरूर मिल गया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और अगर इस स्पीच को कन्वर्ट करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो या मैंने कुछ मिस किया हो तो मुझे माफ कर देना। और आखिर में स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू।